Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the platform Learn with Sharia. In today's session, I'll be talking about pronoun. Dear viewers, when we talk about pronoun, we say that it is a word which is used instead or in place of a noun. And why do we use pronouns in English grammar is it is to avoid the over repetition of a same noun for multiple times in a language. For example, look at these sentences. If I say Danish is my student, और इसी के साथ अगर मैं कंटिन्यूटी में ये कहूं he is intelligent, this he is actually a pronoun which is used instead of Danish. And then if I say my name is Sharyar, I teach, this I again is a pronoun which is replacing this. So to avoid the repetition of the same noun multiple times in a language, we use pronouns. Pronouns को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने लैंग्वेज से बार बार सेम एक ही नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं. अब यहां से ही आपके पास एक एमसीक्यू जनरेट हो सकता है. एंड व्हाट इज दैट एमसीक्यू? वो एमसीक्यू ये हो सकता है, examiner may ask you that let me know about the antecedent of the pronoun. अब रिमेंबर ये याद रखें कि जो भी प्रोनाउन हमारे साथ जिस नाउन के लिए यूज होता है, so that noun is actually called the antecedent of that pronoun. Antecedent का मतलब वो नाउन जिसके लिए हम किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में the noun Danish is antecedent of the pronoun he. इसी तरह यहां पे शहरियार is the antecedent of the pronoun I. So अगर आपके पास MCQ आए, कोई भी सेंटेंस आपके पास लिखी गई हो और आपसे एग्जामिनर पूछे कि let me know about the antecedent of the pronoun, तो antecedent of the pronoun का मतलब that noun which is replaced by any pronoun. तो जो भी नाउन आपके साथ रिप्लेस हुआ होता है, that is actually the antecedent of that pronoun. अब ये जो टेबल आपको इस साइड ऑफ द व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, it is the table which talks about personal pronouns. Remember, personal pronouns are basically 3 in number: first person, second person and third person pronouns. अब ये personal pronouns हमारे पास different cases में आते हैं. For example, subjective, objective, possessive adjectives, possessive pronouns and reflexive pronouns. अब first person singular, this PS is for first person singular. इसी तरह PP represents first person plural. इसी तरह second person plural and second person singular. अब इसी टेबल को आपने अपने फिंगर टिप्स पे रखना है. This table not only helps you out over here in pronoun, but it will help you out in your narration. जहां पे change of pronoun आता है, over there we need to look at the case. वहां पे हमने केस आइडेंटिफाई करके तब ही उसी केस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को चेंज करना होता है. सो दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस प्रोनाउंस पार्ट, but specifically it will help you out in change of pronouns in your narrations as well. अब अगर आप देखें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास I, इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल we. अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं, they are used to express autobiographical point of view. And what do we mean by autobiographical point of view is that when a speaker, when a writer, when someone speaks about himself, या फिर हम कह सकते हैं when someone speak about themselves, यानी अपने बारे में अगर कोई बात करेगा तो उसको हम कहेंगे autobiographical point of view. And autobiographical point of view could be represented by I, first person singular, and इसी तरह अगर मैं कहूं we, हम, so it shows autobiographical point of view. इसी तरह second person singular you, second person plural भी you ही है. अब यहां पे देखिए indicate those directly addressed by the speaker. For example, I am the speaker and you the viewer, you are the viewer. अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली कोई भी बात कर रहा हूं या जहां पे स्पीकर डायरेक्टली किसी को एड्रेस करे, सो वो हमारे पास काउंट होते हैं इन सेकंड पर्सन प्रोनाउंस. इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन को देखें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां पे दिस M रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिन केसेस यानी मेल के लिए. इसी तरह दिस F रिप्रेजेंट्स फेमिनिन. सो
मेल के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन ही, while फीमेल्स के लिए यूज होता है प्रोनाउन she. इसी तरह थर्ड पर्सन न्यूट्रल प्रोनाउन इज इट. इसी तरह थर्ड पर्सन जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन इज दे. सो दिस प्रोनाउन टेबल जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. अब इसी टेबल में अगर हम देखें तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग, जो कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज नॉट द स्पीकर. वो स्पीकर नहीं होता, यानी वो डायरेक्टली एड्रेस करने वाला नहीं होता, एंड इज नॉट बीइंग डायरेक्टली एड्रेस्ड, और ना ही उससे डायरेक्टली बात की जाती है. अब अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लास में कोई टीचर बात कर रहा है, सो द स्टूडेंट्स आर द डायरेक्ट लिसनर्स एंड द टीचर इज द स्पीकर. If a teacher talks about, for example, politicians, for example, something or someone that is not the part of that class actually, so तब हम कह सकते हैं कि ना तो वो स्पीकर है, ना वो डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ अगर बात की जाए, so those persons or those things are mentioned by, denoted by these third person pronouns. इसी टेबल में देखें आपके साथ, एक हमारे साथ हैं possessive adjectives and the second one is possessive pronouns. अब possessive adjectives हमारे पास शो करते हैं permanent ownership को, जबकि possessive pronouns हमारे साथ शो करते हैं temporary ownership को. For example यहां पे देखें, this is my marker. अगर मैं कहूं this is my marker, so इसका मतलब है I have paid for it from my wallet, so I can call it, यानी my marker permanent. अब this over here, this pronoun, the use of pronoun my, अब my क्या है, possessive adjective है. So over here possessive adjectives shows, denotes permanent ownership. जबकि अगर मैं कहूं this marker is mine, let's say मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, मुझे मार्कर देते हैं to यूज करने के लिए, so मैं उसको अपना मार्कर नहीं कह सकता. ओवर देयर मैं इस तरह कहूंगा दिस मार्कर इज माइन, जस्ट टू लेट द स्पीकर्स या व्यूअर्स नो दैट इट मींस टेम्पररी ओनरशिप. सो माइन यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन है, एंड पोजेसिव प्रोनाउंस आपके पास जितने भी होते हैं दे यूज टू शो द टेम्पररी ओनरशिप एंड नॉट द परमानेंट ओनरशिप. एक तो इस टेबल से इस पॉइंट को याद रखें. देन अगेन हमारे साथ प्रोनाउंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं दे आर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस का मतलब कि यानी किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों प्रोनाउंस आपके साथ, यानी तीनों पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी एक ही सेंटेंस में आए, सो ओवर देयर व्हाट शुड बी द ऑर्डर, आप किस तरह उसको अरेंज करेंगे. सो किसी भी सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होगी वहां पे ऑर्डर होनी चाहिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. इसका शॉर्टकट अपने साथ ये फिगर नोट कर लें कि 231 रिगार्डिंग प्रोनाउंस शुड मीन टू यू दैट किसी भी सेंटेंस में अगर आपसे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस का पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं, देन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आते हैं, and then this first person pronoun should be there in any sentence. Examples को देखें, you. अब you क्या है, second person pronoun है, उसके बाद they third person pronoun है, and I is first person pronoun. तो किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हम देखते हैं जिसकी मीनिंग पॉजिटिव हो, इसी तरह अगर मैं कहूं you, he and I, अब see second person, third person and then first person pronoun is used. The exceptional case is कि अगर सेंटेंस किसी भी गिल्ट के बारे में है या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी मिस्टेक के बारे में है. If there is any sentence जहां पे कोई भी गिल्ट मेंशन है या फिर there is acceptance of any kind of mistake, so the order becomes first, second and third, यानी the order shifts from 231 to 123. आपके पास अगर किसी सेंटेंस में किसी गिल्ट के बारे में या फिर किसी भी टाइप ऑफ मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बारे में है, सो सेंटेंस का ऑर्डर बन जाएगा फर्स्ट,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अब इन एग्जांपल्स को देखें. I, first person pronoun, you, second person pronoun, and he, third person pronoun, will ask for forgiveness. इसी तरह I, you, and they are at fault. Acceptance of a mistake is there. So I, first person, you, second person, and they is third person pronoun. अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं. या तो आपके साथ प्लेन आपको कोई एक किसी तरह सेंटेंस देके, फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ओमिट करूं और सेंटेंस इसी तरह लिखी गई हो, फॉर एग्जांपल देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गिल्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी मिस्टेक, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में से जो भी आपके पास वो केसेस में से दे, तो यहां पे third person pronoun should be there according to this order. या फिर आपके साथ 4 sentences could be given to you and you could be asked to choose the correct sentence. आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 4 sentences में से कौन सा वाला करेक्ट सेंटेंस है. तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव नेचर में है तो आप इस ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को याद रखें. इफ द सेंटेंस इज about any guilt or acceptance of any mistake, तो आपको ये वाला ऑर्डर याद होना चाहिए. अब यहां पे गौर करने वाली चीज ये है that even English grammar tells you to place others first when you talk about something positive. Second person, third person and last में first person की बात करें. अगर आप किसी भी मिस्टेक या गिल्ट की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले अपनी बात करें, उसके बाद सेकंड पर्सन एंड देन द थर्ड पर्सन शुड बी टॉक्ड अबाउट. आई होप यहां तक क्लियर है. अब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के अदर जितने भी टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है टू पॉइंट आउट, टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक, टू पॉइंट आउट. यानी सच pronouns are used to point towards a specific noun in the space domain. Space domain का मतलब कि यानी this, these and that and those. These are those 4 demonstrative pronouns जहां पे this और that they are singular nouns. यानी किसी भी singular noun को अगर हमने represent करना होगा, उस किसी भी सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करना होगा, उसकी तरफ इशारा करना होगा, तो हम दिस यूज कर सकते हैं या फिर दैट यूज कर सकते हैं. अब दिस और दैट सिंगुलर के लिए दीज एंड दोज शुड बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स. दीज एंड दोज शुड बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स. इसी तरह दिस और दैट की अगर मैं बात करूं, दिस और दिस की, सो दे कलेक्टिवली रेफर टू नियर बाय नाउन्स. जबकि दैट और दोस की अगर बात की जाए, सो दे रेफर टू फार अवे नाउन्स. यानी स्पेस डोमेन में अगर मैं किसी नजदीक वाले चीज की बात करूंगा जो कि सिंगुलर होगी, सो आई शुड यूज दिस. इसी तरह अगर मैं स्पेस डोमेन में किसी ऐसे नाउन को रेफर करूंगा जो कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, आई शुड यूज दीज. इसी तरह अगर मैं स्पेस डोमेन में किसी फार अवे थिंग को पॉइंट आउट करूंगा, सो दैट शुड बी यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन. एंड इन द सिमिलर मैनर अगर मैं किसी भी फार अवे नाउन में प्लूरल नाउन्स को रिप्रेजेंट करूंगा, डिनोट करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, सो ओवर देयर आई शुड यूज दोज. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क कहां से आता है? जस्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब कि अगर आपके साथ ये दिस, दीज, दैट और दोज जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर इनके बाद सेंटेंस में वर्ब आ जाए, वर्ब का मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है किसी भी सेंटेंस को जिस तरह हम टेंसेस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. लेकिन अगर दिस, दीज, दैट और दोस के बाद हमारे साथ सेंटेंस में नाउन आ जाए, तो उस कंडीशन में इट इज नॉट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बट इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोबारा से सुने, अगर ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जो कि 4 हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस, अगर इनके बाद वर्ब आ जाए, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. लेकिन अगर स्ट्रक्चर में
इन्हीं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद नाउन आ जाए तो तब ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहां पे देखें, दिस इज अ न्यू मार्कर। अब दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इस यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, तो ओवर हियर ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं जहां पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद मार्कर नाउन इज यूज्ड, तो यहां पे ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और ये आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दोज आर गुड बुक्स। अब आर ऑक्सिलरी इज रिपीटेड आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दोस के बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन यूज हो जाए तो उस कंडीशन में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आई होप इट इज क्लियर। स्टे ट्यून्ड।